Dear friends, in continuation of our law on the partnership for CA Foundation, आज हम करेंगे liabilities of the partners to the third parties और हम एक करेंगे law relating to the minor. In last video, what we understand what's an implied authority of the partner, ये हमने last video में topic करा था. Implied authority of a partner means if a partner does any act within his implied authority, then the remaining partners are bound by the action taken by that partner. And in what cases partner, in what circumstances or for what transaction partner do not have a implied authority. ये हमने लास्ट वीडियो में पूरा चैप्टर ये टॉपिक कवर किया था. आज हमारा टॉपिक जो है वो लाइबिलिटीज टू थर्ड पार्टनर, ये वाला टॉपिक और माइनर, ये दो टॉपिक कवर करेंगे. हम रीड करते हैं. Liability of the partner for the act of the firm means what's the liability of the partner to a third party for act done by other partners. ये implied authority से ही flow होके आ रही है, but law specifically made a separate provision. What it reads: every partner is liable jointly or severally for all act of the firm done while he is a partner. यहाँ पे पहले jointly वर्ड आपको पता है, severally मीन्स इंडिविजुअली. इसका जो मतलब होता है वर्ड का इंडिविजुअली, इट मीन्स, इस एग्जाम्पल को मैं आपको समझाता हूँ. ए बी सी ये पार्टनरशिप फर्म है. दे टुक अ लोन फ्रॉम द बैंक. पार्टनरशिप फर्म ने बैंक से लोन लिया. नाउ इस केस में अगर फर्म पैसा नहीं चुका पा रही, फर्म की एसेट्स आर नॉट सफिशिएंट, बी और सी बिकम insolvent, then A alone is liable to repay that loan because the liability of the partner is jointly or severally for the debts of the firm or for liability towards the third party. और दूसरा सिनेरियो लेते हैं, फर्म पैसा नहीं चुका पा रही है, सी इंसॉल्वेंट हो गया है, तो ए और बी को जॉइंटली वो लाइबिलिटी रीपे करनी पड़ेगी. और ये केस कब आ रहा है, यहाँ पे एक वर्ड लिखा आ रहा है वाइल ही इज अ पार्टनर. ये मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में समझाऊंगा. ये मैं आपको चीज समझाता हूँ. सपोज ए बी सी आर पार्टनर, इन्होंने बैंक से लोन लिया था. After that, C retires. Now the loan was taken at the time when C was the partner. If there is a no change in the agreement at the time of the this thing retirement of C, means no change का मतलब हमने C को उसकी liability से free नहीं करा है, then even after retirement C will continue to be liable to repay the loan if A and B fails to repay the loan. तो लॉ क्लियर कह रहा है every partner is liable jointly with other partners or individually for all acts of the firm done while he is a partner. मीन्स जो लाइबिलिटी उसके पार्टनरशिप टेन्योर के दौरान इंकर करी गई है वो उसके लिए लियाबल है, चाहे जब लाइबिलिटी पे करने का टाइम आए वो उस वक्त पार्टनर था या नहीं था. दिस इज अ लॉ रिलेटिंग टू द लाइबिलिटी टू द थर्ड पार्टीज. आई होप आपको ये प्रोविजन क्लियर हुआ होगा. नाउ कम्स टू द नेक्स्ट प्रोविजन. लेट मी क्लियर दिस थिंग. Now what is the next provision? Liability for wrongful acts of the partner. Firm is liable to third party for wrongful act or omission by the partner if following conditions are satisfied. यहाँ पे वर्ड लिखा है wrongful act और omission, ये चीज लिखा है वर्ड. तो यहाँ पे क्या कहना चाह रही है, फर्म इज liable to third party for wrongful act or omission by the partner if following conditions are satisfied. Wrongful act or omission by partner is done in the ordinary course of business or with the authority of other partners, and due to such act loss or injury is caused to the third party. मैं आपको ये पूरा एग्जांपल, ये पूरा प्रोविजन एक एग्जांपल से समझाता हूँ. It will make you understand better. For example, A, B, C are partners.
They are dealing in a chemical business. C supplied some chemical, wrong chemical to the X. Means X को requirement थी कोई particular chemical की, but C by mistake supply the wrong chemical. And due to the supply of wrong chemical, there is some explosion in a X factory. X now file a case against the partnership firm for the recovery of that loss. इस सिनेरियो में ABC, the entire firm is responsible to the act for the wrongful act of the C. हमने ऊपर ये पढ़ा था कि अगर एग्रीमेंट साइलेंट है उस केस में सी जो है जितना भी नुकसान हुआ है वो नुकसान की भरपाई ए और बी को करेगा, बट यहाँ पे लॉ थर्ड पार्टी के बीच में की बात कर रहा है कि सी की गलती से एक्स को नुकसान हुआ और एक्स ने उस नुकसान की भरपाई के लिए ए बी सी पूरी फर्म पे केस फाइल कर दिया। तो ए और बी ये नहीं बोल सकते कि नहीं ये सारे का सारा नुकसान सी बेयर करेगा। To the third party, the entire firm is responsible for the wrongful act of the C. बट क्या वो ए और बी सी से नुकसान रिकवर कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे वो डिपेंड करता है उनके आपस का एग्रीमेंट में। अगर उनके आपस का एग्रीमेंट साइलेंट है तो देन ए एंड बी वो नुकसान सी से रिकवर कर लेंगे। बट अगेन बोल रहा हूँ फॉर द टू द थर्ड पार्टी एंटायर फर्म इज रिस्पॉन्सिबल। यही लॉ है, दोबारा रीड करते हैं। फर्म इज लिएबल टू थर्ड पार्टी फॉर रॉन्गफुल एक्ट और ओमिशन बाय द पार्टनर if following conditions are satisfied. Wrongful act is done in the ordinary course of business or with the authority of other partners, and due to such act loss or injury is caused. It means एक पार्टनर की गलती से जो थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है उसके लिए पूरी फर्म जिम्मेदार है, प्रोवाइडेड वो एक्ट पार्टनर ने इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस करी हो या विद द अथॉरिटी ऑफ पार्टनर करी हो। बट अमंग देमसेल्फ मीन्स ए बी सी वो सारे का लॉस सी से रिकवर कर सकते हैं अगर उनके बीच में एग्रीमेंट साइलेंट है। तो यहाँ पे हमने पढ़ा लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। ये होप आपको इतना पॉइंट क्लियर हुआ होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट, लाइबिलिटी ऑफ फर्म ड्यू टू मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड। मिस एप्लीकेशन ऑफ फंड मीन्स आपने फंड का गबन करा है, फंड को मिस चुरा लिया, कुछ भी कर लिया, समझते। Firm is liable to make good the loss caused to third party in following two cases. अब हम पढ़ते हैं, पार्टनर एक्टिंग इन हिज अथॉरिटी रिसीव फंड्स और मनी फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड मिसअप्लाइज इट। इसका मतलब ए बी सी पार्टनर है, इन्होंने एक्स पार्टी से एडवांस लिया और वो एडवांस सी ने लिया और सी ने उस पैसे को मिस एप्रोप्रिएट कर दिया, उसने उस पैसे का गबन कर लिया। इस केस में पार्टनरशिप फर्म, एंटायर पार्टनरशिप फर्म ए बी सी विल बी लिएबल टू एक्स। यहाँ पे हम ये नहीं बोल सकते ए और बी के साथ ये तो सी ने मिस एप्रोप्रिएशन करा, सी अलोन विल बी लिएबल। हमने ऊपर फ्रॉड का केस पढ़ा था कि ए बी सी ने फ्रॉड करा है तो सी इज लिएबल टू कंपनसेट ए बी। बट यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं बॉस, यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टीज। मींस सी ने फ्रॉड करा है, मिस एप्रोप्रिएट करा है, बट उसके लिए एंटायर फर्म विल बी रिस्पॉन्सिबल टू द थर्ड पार्टी। यहाँ पे लाइबिलिटी टू थर्ड पार्टी कहना चाह रहे। दूसरा सिनेरियो पढ़ते हैं, फर्म रिसीव द फंड्स फ्रॉम थर्ड पार्टी एंड पार्टनर्स मिसअप्लाई। पहला केस कौन सा पढ़ना है, फंड्स डायरेक्टली किसने रिसीव करे, पार्टनर ने रिसीव करे और उसने उसको मिसअप्लाई कर दिया। दूसरा सिनेरियो कौन सा आ रहा है, फर्म ने फंड्स रिसीव करे है, मींस इट वाज रिसीव बाय द कैशियर ऑफ द फर्म एंड देन पार्टनर समहाउ मिसअप्लाई और मिसअप्रोप्रिएट दैट फंड। इन बोथ सिनेरियो पैसे का गबन, पैसे का मिसयूज किसने करा है, पार्टनर ने। बट उस पार्टनर की गलती से पूरी फर्म विल बी लिएबल टू द थर्ड पार्टी।
ये हमारा पार्टनरशिप का लॉ है, बिकॉज लॉ सीधी सी बात करता है थर्ड पार्टी इज डीलिंग विद द फर्म। तो अगर उसमें थर्ड पार्टी इज डीलिंग विद द फर्म, अगर उस सिनेरियो में पार्टनर हु इज रिप्रेजेंटिंग द फर्म, बिकॉज पार्टनर इज एन एजेंट ऑफ द फर्म, तो अगर एजेंट ने कुछ भी गलती करी है जिससे थर्ड पार्टी को नुकसान हुआ है, जिम्मेदारी पूरी फर्म की है। नेट में इस प्रोविजन की ये हमारी थीम है। तो आप होप आपको ये वाला प्रोविजन क्लियर हुआ होगा। नाउ कम्स टू द नेक्स्ट वीडियो। नेक्स्ट नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक। मैं वीडियो बोल गया था, व्हाट इज द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू माइनर। हम लोगों ने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में पढ़ा है एग्रीमेंट विद द माइनर इज वॉइड एब इनिशियो, ये हमने पढ़ा है। और हमने ये भी पढ़ा है कि पार्टनरशिप एक्ट प्रोविजन में कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के सारे प्रोविजन एप्लीकेबल होंगे अनलेस पार्टनरशिप एक्ट मेक डिपार्चर फ्रॉम दैट थिंग। मीन्स पार्टनरशिप एक्ट कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के प्रोविजन के कुछ अगेंस्ट ही बोल रहा है या कुछ डिफरेंटली बोल रहा है। एक सिंपल सा रूल है, स्पेशल प्रोविजन प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन। मीन्स अगर कोई स्पेशल प्रोविजन है तो प्रिवेल ओवर जनरल प्रोविजन, तो वो जनरल प्रोविजन को ओवरराइड करेगा। यहाँ पे पार्टनरशिप एक्ट में देयर आर स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू माइनर, हेंस अकॉर्डिंगली ये वाले प्रोविजन प्रिवेल करेंगे रेदर देन द जनरल प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट। व्हाट इज द जनरल प्रोविजन? लेट्स स्टार्ट। जनरल पॉइंट क्या कहता है? माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। मीन्स यहाँ पे मेजॉरिटी की इशू ही नहीं है। माइनर कैन बी एडमिटेड ओनली विद द कंसेंट ऑफ all partners and that too only for the benefits of the partnership. It means अगर कोई पार्टनरशिप फर्म में लॉस होता है तो उस लॉस के लिए माइनर विल नॉट बी पर्सनली लायबल। मीन्स उसकी पर्सनल एसेट्स पे कोई भी, जिसे बोलूं, आंच नहीं आएगी। अब आपके दिमाग में पॉइंट आ रहा होगा कि सर ये क्या प्रोविजन है? बोले क्यों हम माइनर को पार्टनर बनाना चाहेंगे और वो भी सिर्फ बेनिफिट देंगे, लॉस नहीं देंगे। इसका एक प्रैक्टिकल सिनेरियो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। फॉर एग्जांपल ए बी सी तीन पार्टनर है और बहुत अच्छी पार्टनरशिप रन कर रहे, एक दूसरे का आपस में फेथ है। नो ऑल ऑफ सडन ए की डेथ हो गई। जब ए की डेथ हो गई तो व्हाट विल हैपन? देयर विल रिमेन टू पार्टनर्स बी एंड सी। नाउ ए का सन है मिस्टर एक्स हु इज अ माइनर। नाउ दे वांट, बी एंड सी वांट कि भाई पार्टनरशिप फर्म का जो भी प्रॉफिट हो रहा है उसका शेयर कंटिन्यूली ए की फैमिली को जाना चाहिए, बिकॉज ए हैज आल्सो कंट्रीब्यूटेड लॉट टू द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप। अब ए की तो डेथ हो गई, तो व्हाट हैपन? दे मेक एक्स एज अ पार्टनर और उसमें एज पर लॉ माइनर कैन ओनली बी अ पार्टनर फॉर द बेनिफिट्स, बिकॉज जनरल प्रोविजन हमारे पास क्या है कि माइनर इज नॉट नॉलेजेबल टू टेक लाइबिलिटी। हेंस कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी और पार्टनरशिप एक्ट में भी यही प्रोविजन है कि माइनर कैन ओनली टेक अ बेनिफिट इन अ कॉन्ट्रैक्ट, माइनर कैन नॉट टेक अ लाइबिलिटी इन अ कॉन्ट्रैक्ट। अकॉर्डिंगली द पार्टनरशिप एक्ट ने भी वही थीम मेंटेन करी है, माइनर कैन बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द पार्टनरशिप एंड दैट टू विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अगर कल क्वेश्चन आता है क्या मेजॉरिटी ऑफ द पार्टनर एडमिट अ माइनर एज अ पार्टनर, द आंसर इज बिग नो, बिकॉज यहाँ पे पार्टनरशिप एग्रीमेंट को क्या कहते हैं, प्रायोरिटी नहीं दी गई है। यहाँ पे प्रायोरिटी किसी चीज को नहीं है। एक्ट ने क्लियर लिख दिया है कि माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड विद द कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब हम यहाँ पे पढ़ते हैं राइट्स ऑफ द माइनर पार्टनर। राइट टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड द प्रॉपर्टी ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली क्लियर है, कोई लॉजिक इसमें कोई टेक्निकलिटी नहीं है। राइट ऑफ एक्सेस टू इंस्पेक्ट एंड कॉपी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, माइनर कैन हैव एक्सेस टू द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इसकी में सिग्निफिकेंस क्या है मैं आपको बताऊंगा। माइनर इज पर्सनली नॉट लियाबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म, ऑब्वियसली वो हमने ऊपर पढ़ा ही है कि माइनर कैन ओनली बी एडमिटेड फॉर द बेनिफिट।
राइट टू sue पार्टनर फॉर his शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड प्रॉपर्टी व्हाइल लीविंग द फर्म। मीन जब माइनर फर्म छोड़ के जा रहा है तो वो अपना शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए रिमेनिंग पार्टनर पे केस फाइल कर सकते हैं। दीज आर द राइट्स अवेलेबल टू द माइनर। अब हम बात कर रहे हैं राइट्स नॉट अवेलेबल। माइनर शेयर इज लिएबल फॉर द एक्ट ऑफ द फर्म। ये क्या कहना चाह रहा है कि फर्म ने प्रॉफिट अर्न करा और वो प्रॉफिट अभी तक डिस्ट्रीब्यूट पार्टनर्स में नहीं करा है। लेटर ऑन इन नेक्स्ट ईयर पार्टनरशिप फर्म में लॉस हुआ तो ऑब्वियसली उसमें जितना माइनर का शेयर है प्रॉफिट में वो उस लॉस से हम लोग सेट ऑफ कर सकते हैं। मीन्स माइनर को पर्सनली कुछ भी लेके नहीं आना है, जितना उसका शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो पार्टनरशिप फर्म का लॉस उस शेयर ऑफ प्रॉफिट से सेट ऑफ कर सकते हैं। दैट्स कॉल्ड माइनर शेयर इज लिएबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म। And what is the next right which is not available? Do not have a right to sue partner for his share of profits and property while continuing as a partner। नहीं, जब तक वो पार्टनर है तो वो अपना शेयर के लिए, शेयर ऑफ प्रॉफिट और शेयर ऑफ प्रॉपर्टी के लिए रिमेनिंग पार्टनर को स्यू नहीं कर सकता। मीन्स उसको अगर शेयर ऑफ प्रॉफिट नहीं दे रहे रिमेनिंग एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, मतलब जो रिमेनिंग पार्टनर्स है, तो वो कुछ उनको स्यू नहीं कर सकता। ही कैन लीव द फर्म एंड देन ही कैन स्यू द रिमेनिंग पार्टनर्स फॉर हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट्स एंड शेयर ऑफ प्रॉपर्टी। ये तो हम लोगों ने जनरल पढ़ा। अब मेजर चीज आ रही है, व्हाट विल हैपन ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, व्हाट नीड्स टू बी डन। पब्लिक नोटिस ऑन अटेनिंग मेजॉरिटी, minor, such person means minor is required to give public notice within a specified time। वो क्या चीज अभी बताऊंगा मैं आपको। वो नोटिस उसे क्या देना है? वो नोटिस उसे देना है क्या वो पार्टनरशिप कंटिन्यू करना चाहता है और अदर ही डू नॉट वांट टू कंटिन्यू इन अ पार्टनरशिप। मीन्स उसे पब्लिक नोटिस देना है, आइदर कंटिन्यूएशन का पब्लिक नोटिस देना है और उसे पब्लिक नोटिस देना है डिसकंटिन्यूएशन का। अब यहाँ पे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या चीज आ रहा है, व्हाट इज अ स्पेसिफाइड टाइम। अब मैं आपको बताता हूँ स्पेसिफाइड टाइम क्या दिया गया है। इट इज द लेटर ऑफ द फॉलोइंग। हम रीड करते हैं, लॉ एग्जाम्पल से समझाऊंगा। 6 months फ्रॉम द डेट ऑफ अटेनिंग मेजॉरिटी और 6 months फ्रॉम द डेट when it comes to the knowledge of the minor that he was a partner from the back date। मीन्स 6 महीने कहाँ से काउंट करेंगे कि जब उसने मेजॉरिटी अटेन कर ली है या उसकी नॉलेज में आया वो पार्टनर बन गया है। आपको भी सुनने में लगेगा सर ये तो बड़ा वियर्ड प्रोविजन, समझ ही नहीं आ रहा। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। यहाँ पे मैं स्पेस लेता हूँ। हमने एक्स जो माइनर था उसको पार्टनर बनाया 1421 से। नाउ माइनर इज नॉट कैपेबल ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग, तो ऑब्वियसली पार्टनरशिप एग्रीमेंट पे उसके साइन भी नहीं होंगे, तो हमने एक्स को माइनर को पार्टनर बना लिया। मीन्स एक्स ए बी सी पार्टनर बन गया। अब जो माइनर है वो मेजर हो गया 1/4/23 को, वो क्या हो गया, मेजर हो गया। उसको नॉलेज में नहीं था कि वो पार्टनर। बाद में पार्टनरशिप रिमेनिंग पार्टनर्स ने उससे कॉरेस्पॉन्डेंस करी 30/6/23 को, भाई बताओ तुम कंटिन्यू करना चाहते हो या छोड़ना चाहते हो। इस सिनेरियो में माइनर को कब पता लगा, 30/6 को पता लगा, जो मेजर हो चुका था, भाई मैं तो इस फर्म में पार्टनर हूं। तो उसको जो पब्लिक नोटिस देना है वो पब्लिक नोटिस का टाइम क्या है, अगर यहां से 6 महीने काउंट करे 30/9/23 और यहां से 6 महीने काउंट करे 31/12/23, इन दोनों में से डेट बाद में लेटर में कौन सी डेट आ रही है, लेटर डेट कौन सी आ रही है, 31/12। इसका मतलब उसको 31/12/23 तक पब्लिक नोटिस देना है। तो आपको एग्जाम्पल से समझ में आया
कि देयर कुड बी अ रियल लाइफ सिचुएशन जब माइनर को पता ही नहीं था कि वो पार्टनर है, उसको मेजर बनने के भी 3 महीने के बाद पता लगा वो पार्टनर है। तो जो लॉ ने 6 महीने का टाइम दिया है वो कहाँ से दिया है? 6 महीने में से हम 2 डेट निकालेंगे, 6 महीने फ्रॉम द डेट ऑफ दिस बिकम मेजर और 6 महीने फ्रॉम द डेट इट कम्स टू हिज नॉलेज दैट ही हैज बिकम द पार्टनर। उस 6 महीने में उस 6 महीने को ऐड करने के बाद जो भी लेटर डेट आ रही है दैट इज द लास्ट डेट जहां तक उसको पब्लिक नोटिस देना है। अब if a person fails to give a public notice within a specified time then law मान रहा है कि वो पार्टनर कंटिन्यूएशन करना चाहता है। मींस लॉ ने ये माना है कि वो पब्लिक नोटिस क्यों नहीं दे रहा है, क्योंकि उसकी इंटेंशन है ही वांट्स टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप। अब यहाँ पे पॉइंट ये हो रहा है कि ये पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट क्यों है और 6 महीने का टाइम क्यों है। इसमें मैं एक मेजर पॉइंट आपको बताना चाहूंगा और उस मेजर पॉइंट से आपको सिग्निफिकेंस समझ में आएगी। अगर माइनर ने पार्टनरशिप कंटिन्यूएशन करी आइदर विदाउट गिविंग पब्लिक नोटिस और बाय गिविंग पब्लिक नोटिस, तो क्या मेजर पॉइंट आ रहा है? He shall be personally liable for all acts of the firm done since he was admitted to the benefit of the partnership। मीन्स ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था 1/4/21 को एक्स माइनर था, वो पार्टनर बन गया और उसने 31/12/23 को नोटिस दिया कि ही वांट्स टू कंटिन्यू विद द पार्टनरशिप। इस केस में जितने भी फर्म ने इस दिन से लाइबिलिटी इंकर करी है उसके लिए पार्टनर माइनर विल बिकम पर्सनली लियाबल। मीन्स अगर हम मान के चलते फर्म ने इस दिन लोन लिया था, टेस्ट के बाद लोन लिया था और अब वो फर्म लोन नहीं चुका पा रही है, इस डेट को फर्म लोन रीपे नहीं कर पा रही है, माइनर विल बी लियाबल, सॉरी रदर गलत बोल गया, माइनर एक्स तो मेजर हो चुका है, एक्स विल बी लियाबल टू रीपे दिस लोन। और ये 6 महीने का टाइम, और एक चीज और पढ़ाता हूं, माइनर को राइट दिया गया है कि भाई आप बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड कर सकते हो, एक्सेस कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो, कॉपी ले सकते हो उसकी। तो 6 महीने का टाइम जो दिया गया है उसका इंटेंशन लॉ का क्या है कि भाई 6 महीने में आप पूरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स रीड करके ये देख लो, समझ लो कि आपको आपके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी आएगी या नहीं आएगी। अगर आपको लगता है आपके ऊपर एडिशनल लाइबिलिटी आएगी देन यू डिसकंटिन्यू द पार्टनरशिप, और आपको लगता है नहीं आएगी एंड यू वांट टू कंटिन्यू, और उसके बाद अगर गलती से आ गई देन यू विल बी पर्सनली लायबल। तो आपको 6 महीने के टाइम सफिशिएंट टाइम दिया गया है। यू स्टडी द बुक्स, you read the books, you take the copies of books of accounts and then take decision consciously। और अगर आपने एक बार डिसीजन ले लिया है then you will be personally liable from the date you was admitted to the benefit of the partnership। ये मेजर चीज है। बाकी तो मैं सिंपल है, मैं आपको बताता हूँ। अगर वो इलेक्ट करता है कि वो पार्टनर बन गया तो हिज राइट एज अ माइनर कंटिन्यू अप टू द डेट ऑन विच ही गिव्स अ पब्लिक नोटिस। इसका मतलब अगर हम बात करते हैं 1/4/23 को वो जेंटलमैन मेजर हो गया है और मान लेते हैं उसको 30/9/23 तक नोटिस देना है। इस दौरान फर्म के ऊपर कोई लाइबिलिटी इंकर हुई जिसमें पार्टनर्स को अपनी पर्सनल एसेट लेके आनी है, तो इस 6 महीने के दौरान उसके राइट्स विल कंटिन्यू एज दैट ऑफ माइनर, बिकॉज अभी तक उसने नोटिस नहीं दिया है। तो लॉ यही कह रहा है his right as a minor continue up to the date on which he gives a public notice। Thus from the date he becomes major till the date he gives a public notice his right will be that of minor। लॉजिकल ये बिकॉज अभी तक उसने डिसीजन ही नहीं लिया है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है नहीं। यहाँ पे मैं ये राइट्स की बात कर रहा हूँ बट रेदर मैंने आपको ये वाला पॉइंट यहाँ पे समझाया है। राइट्स का मतलब है कि बेसिकली उसका जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है वो सब वही रहेगा जो पहले था, उसके पास कोई राइट नहीं है कि, तो शेयर वही रहेगा। मैंने आपको रेदर लाइबिलिटी वाला पॉइंट समझा दिया राइट के चक्कर में, थोड़ा सा मिस कर गया मैं, कि
his liability as a minor continue up to the date on which he gives a public notice। तो मैं आपको ये जो बोलना चाह रहा हूं कि जो 6 महीने के दौरान का टाइम है जो उसको पब्लिक नोटिस देना है, उसमें उसके राइट्स और उसकी लाइबिलिटीज विल बी दैट ऑफ द माइनर इवन दो ही हैज बिकम द मेजर। बट वंस ही टेक अ डिसीजन कि भाई मैं तो माई पार्टनरशिप में कंटिन्यू करना चाहता हूं, इन दैट सिनेरियो उसकी लाइबिलिटी, पर्सनल लाइबिलिटी विल बी स्टार्ट फ्रॉम द डेट ही वाज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। Rights and liability if minor elect not to become the partner on obtaining majority, सेम चीज है, उसके rights और liabilities will be remain that of minor even after he becomes a major। means 6 महीने के दौरान even though he has become the major but उसकी rights and liability will remain that of the minor because उसने अभी तक decision नहीं लिया है। तो यहाँ पे सिर्फ आपको ये जो मेजर पॉइंट याद करने हैं वो यही करने हैं, ये स्पेसिफाइड टाइम का और व्हाट इज द सिग्निफिकेंस इफ इट गिव्स द पब्लिक नोटिस। तो आई होप आपको मेरा ये लेक्चर समझ में आया होगा। आपको 2 पॉइंट आज क्लियर होंगे, लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर टू द थर्ड पार्टी एंड व्हाट आर द प्रोविजन ऑफ द पार्टनरशिप एक्ट रिलेटिंग टू द माइनर। Again, I request if you find my videos, my lecture to be useful, please do subscribe my video. Thank you.